سے خطاب کے دوران منوج سنہا نے کہا کہ کشمیری نوجوانوں نے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کی چھاپ چھوڑی ہے، لیکن چند عناصر یہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منزلیں اور بھی ہیں جنہیں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر ہمارے یواؤں کو، نوجوانوں کو اناوت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، آئیے پرگتی کے راستے پر جموں کشمیر کو ہم لے چلیں۔ پورے دیش میں جس طرح کا بدلاؤ ہو رہا ہے، جموں کشمیر کے یوا بھی، جموں کشمیر کے لوگ بھی اس بدلاؤ کے بھاگیدار بنے۔ متروں، کئی اسٹارٹ اپ میں یہاں کے نوجوانوں نے ادبھت کام کیا، ہم پرفارمر شرینی میں آ گئے۔ کیا ضرورت تھی بندوق اٹھانے کی؟ آئیے ان چھیتروں میں ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو آگے بڑھانے۔ پرتیبھائیں بہت ہیں ہمارے پاس۔ جموں کشمیر جیسی پرتیبھا میں سمجھتا ہوں دیش کے کسی حصے میں نہیں۔ اس پرتیبھا کا صحیح سدپیوگ ہم کریں، یہ میں آپ سے نویدن کروں گا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ پوچھنا ہے تو غزل والوں سے پوچھو جا کر، پوچھنا ہے تو غزل والوں سے پوچھو جا کر، کیسے ہر بات سلیقے سے کہی جاتی ہے، کیسے ہر بات سلیقے سے کہی جاتی ہے۔ جموں کشمیر کے LG منوج سنہا نے مستقبل قریب میں جموں کشمیر کے عوام کو 24 گھنٹے بنا خلل بجلی فراہم کرنے کا اپنا عزم دہراتے ہوئے لوگوں سے بجلی بل ادا کرنے کی تلقین کی۔ رانی پورہ اننت ناگ میں مارٹن چین سٹیچ اینڈ ایمبرائڈری کلسٹر کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر LG نے کشمیری دستکاری کی بھی ستائش کی۔ دستکاری شعبے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے دستکاروں کو اسناد و ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ بجلی کے چھیتر میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے کی تلنا میں ہماری ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی کافی حد تک بڑھ گئی ہے، اور وہ استھتی جلد ہی آ جائے گی کہ 24 گھنٹے ہم بجلی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک نویدن میں عوام سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی ویوستھا نہیں چل سکتی کہ ہمیں سویدھا تو چاہیے لیکن سویدھا کا شلک ہم نہیں دیں گے۔ یہ ویوستھا دیر تک نہیں چل سکتی۔ تو میرا ونمرتا پوروک آپ سے آگرہ ہے، اچھی سویدھا کے لیے کچھ تو جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی۔ اور ان لوگوں کا کیا گناہ ہے جو بجلی کے لیے بل بھگتان کرتے ہیں لیکن انہیں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ میٹر لگانے کا کام ہم لوگ شروع کیے ہیں۔ میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ میٹر انوارے روپ سے لگوائیے، اور میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ اگر غریب آدمی ہے، کسان ہے، مزدور ہے، تو وہ پرشاسن کی ذمہ داری ہے، اسے ہم سبسڈی دیں گے، لیکن جو لوگ بھگتان کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے انہیں بھگتان کرنا چاہیے، تبھی سیوائیں دی جا سکتی ہیں۔ LG منوج سنہا نے مزید کہا کہ کشمیر کی قدیم ریشم صنعت میں نئی جان ڈالنے کے لیے بھی حکومت وعدہ بند ہے، جبکہ 7 دستکاری صنعتوں کی GI ٹیگنگ میں کامیابی کے بعد ان کے عالمی سطح پر ایک سپورٹنگ کی راہیں بھی ہموار ہوئی ہیں۔ 1.5 لاکھ آرٹیزن 432 ٹریننگ سینٹر کے مادھیم سے انہیں ٹریننگ دینے کا کام پورا کیا گیا ہے۔ کارخاندار اسکیم کے مادھیم سے 26 یونٹ استھاپت کی گئی ہے، اور لکشیہ رکھا گیا اس برس کے انت تک یہ جو 26 یونٹ ہے اسے 50 کر دیا جائے۔ جموں کشمیر کے ہست شلپ کی بہمولیہ پرمپرا گلوبل مارکیٹ جگہ سنشچت کرنے کے لیے 7 کرافٹس، کارپیٹ، پشمینہ، سوجنی، خاتم بند، والنٹ وڈ ورکنگ، پیپر ماشی، کنی صاحب کی GI ٹیگنگ ہو گئی ہے، جس سے ایکسپورٹ کی سمبھاوناؤں کے دوار کھل گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس یوتھ کے صدر سلمان ساگر نے آج کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی جموں کشمیر کے نوجوانوں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلمان نے کہا کہ وہ جمہوری طریقے سے آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سلمان نے پارٹی کے سینئر ممبران سے خطاب کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ اپنے علاقوں کے لوگوں تک پہنچے۔ تیسرا سال ہونے کو آ رہا ہے، 5 اگست کو کمپلیٹ ہو جائیں گے 3 سال۔ تو یہاں کی یوتھ، یہاں کے لوگ، بالخصوص میں یوتھ کی بات کروں گا، یہاں کے یوتھ جو ہے انہوں نے کبھی وہ ڈیسیجن ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا ہے
दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, दैट विल रिमेन अनएक्सेप्टेबल। हम अपने हदूद के इख्तियार में जो जमहूरी हदूद है हमारे, जो हमारे कानूनी इख्तियारात हैं, हम अपने कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे मुल्क के कानून के अंदर। हमें पूरा यकीन है, बेशक आज एक ऐसी रजीम है जो कानून की भी मतलब नहीं चलने देती है किसी हद तक, लेकिन हमारा पूरा यकीन है हम अपने मुल्क के कानून पे, हम अपने मुल्क के कानून के थ्रू वो चीज़ें वापस लाएंगे जम्मू कश्मीर में जो हमारी थी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शन राबी ने दावा किया कि 3 साल कबल आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से जम्मू कश्मीर में बर्क रफ्तारी से तरक्याती काम हुए हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अंद्राबी ने अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया जो ये दावा कर रही हैं कि मनसूखी के वक्त जो वादे किए गए थे उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया। उन्होंने कहा कि बहुत से नए इक़दामात किए गए हैं और जम्मू कश्मीर में तमाम शोबों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की गई हैं। कहीं बजते नहीं देखा है। हाँ, उनकी जुबान के डोल बजते ही रहे तब से भी और 70 सालों में भी। वो तब कहते थे हम 370 की रक्षा करेंगे और हम आपको ऑटोनॉमी दिलाएंगे, ये उन लोगों का काम था बोलने का। अब जो वो हट गया, पर्दा हट गया, अब बजने के लिए तो कुछ है नहीं, अब उनको वो अपना डोल बजाते रहना है। हम काम करते रहेंगे और जो काम कभी जिंदगी में जम्मू कश्मीर में नहीं हुए थे वो प्रोग्रेस हो रहा है और आइंदा सालों में वो दिखेगा। और यहाँ कोई भेदभाव न था, न है, न होगा। 370 उनके लिए स्लोगन तब भी था और अब भी है। ना वो वापस आएगा, ना वो बचा सके, ना ऑटोनॉमी दिला सके। अब उनके पास रहा क्या? अब उनके पास सिर्फ इतना ही रहा कि वो बोलते रहे। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नजरबंदी को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस अरसे के दौरान मीरवाइज पर न सिर्फ सियासी सरगर्मियों बल्कि मजहबी इज्तिमात में शिरकत पर भी पाबंदी आयद रही। अगरचे एक तरह से सियासी जमातों ने उन्हें भुला दिया है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के एक ट्वीट ने सियासी लीडरों को बेदार करने का काम किया है। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मीरवाइज इस्लाम का एतदाल पसंद चेहरा हैं और वो शिद्दत पसंदों के निशाने पर भी रहे हैं। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। 4 साल हो गए और अपने पता नहीं क्या हुआ है कि उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूशन कोई आज का तो है नहीं मीरवाइज का, ये तो 600-700 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। दे कैन नॉट प्ले विद आवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आप करें अपनी सियासत, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आप अब इंटरफेयर ना करें। इट इज नाउ टेंटमाउंट टू इंटरफेरेंस इन आवर रिलीजन। और हमें दिख ही नहीं रहा है कि नॉट ओनली मीरवाइज, देयर आर मेनी अदर पीपल, मीरवाइज साहब तो हैं ही, जो मुझे लगता है 4-4, 5-5 साल से जेलों में है और कोई बात भी नहीं कर रहा है। हमने तय कर रखा है, तो हम देखेंगे, हम एक एक का नाम लेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हम हर एक का नाम लेंगे। और शुरुआत हमने अपने जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं उनसे की हुई है। उधर एनसी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादक ने भी मीरवाइज की मुसलसल नजरबंदी की मजम्मत करते हुए कहा कि उन्हें उनकी नजरबंदी खत्म कराने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए। उधर पीडीपी के सीनियर लीडर और रियासती सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कोशिन ने कहा कि मीरवाइज को उनके मजहबी हुकूक की अदायगी से रोकना गैर जमहूरी है। बहरहाल तमाम सियासी जमातों ने एक आवाज में मीरवाइज की नजरबंदी को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। इसके बारे में बात की है, हमारी लीडरशिप ने बात की है, वक्तन वफ़क्तन हमने बात की है कि जितने भी नज़रबंद हैं हमारे लीडर, उन लोगों को रिहा किया जाए। बट क्योंकि मीरवाइज साहब, जैसे मैंने कहा कि एक मजहबी लीडर है, उनका रिहा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक मजहबी बातें करते हैं। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक वो रिलीजियस का एक सेंटिमेंट होता है, उस तरीके को सोच के मीरवाइज साहब के लिए इस वक्त बाहर आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है, एक ऐसे मुअल्लिम को, एक ऐसे लीडर को जो मजहबी लीडर है और मजहब मतलब हर एक का हक है हिंदुस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये हमारा सबका, तो वो लीड करते हैं मुसलमानों को और मुसलमानों का लीडर है। अब कभी जामिया मस्जिद भी बंद होती है, सारा कुछ होते हैं उनका, और उनको तो अब 3रा साल हो गया। ये तो बहुत ही हम इसकी मजम्मत करते हैं। जेके सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी खत्म करने और दीगर सियासी समाजी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया है। यूसुफ तारिगामी ने यह भी कहा कि वो पहले ही उनकी रिहाई को पीएम मोदी के नोटिस में ला चुके हैं, लेकिन महीनों और साल गुजर चुके हैं और मजहबी, सियासी और समाजी कारकुनों की रिहाई के बारे में हुकूमत की संजीदा कोशिशें नजर नहीं आती।
बार कहा हमारी जो जामे मस्जिद है और जो एक हिस्टोरिक प्लेस है, इसका दर्जा बहुत ज़्यादा है कश्मीर के तहजीब में, कश्मीर के तमद्दुन में। उस पर वहाँ भी नमाज पढ़ने में अभी तक रुकावटें खड़ी की जा रही है। और ठीक आपने कहा, मीरवाइज साहब और इसके साथ और भी लोग हैं जो कई सालों से जेलों में बंद हैं। अरे साहब, कुछ तो इंसाफ करो। और यही लोग कहते हैं, यही सरकार कहती है कि नॉर्मल सी लाई है, कहती है ना बार बार। हर जगह डंडोरा पीटा जा रहा है, पार्लियामेंट से लेकर हर सड़क पर। क्या हमने अमन कायम किया? अगर अमन कायम किया तो लोग मस्जिद में जाए, डरते क्यों हैं आप? लोग मीरवाइज को देखना चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, उसको बंदिशें क्यों? मुत्तहदा मजलिस उलमा ने मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की मुसलसल घर में नजरबंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एएमयू के सीनियर रुकन मौलाना शम्सुर रहमान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत मीरवाइज को रिहा करे, क्योंकि वो अपनी मजहबी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीरवाइज का न सिर्फ एक मजहबी रहनुमा की हैसियत से किरदार है, बल्कि मुआशरे की बेहतरी के लिए उनकी खदमात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीर की रिहाई के ताल्लुक से न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि बैरूनी सतह पर भी आवाज़ें बुलंद होती रही हैं। हुक्काम पर, ज़िम्मेदारों पर जोर दिया जा रहा है, उनसे अपीलें की जा रही हैं कि मौसूफ की रिहाई अमल में लाई जाए, ताकि वो अपनी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ अवाम के ताल्लुक से, मिल्लत कश्मीर के ताल्लुक से जो उनकी बनती हैं और सदियों पर मुहीत उनकी जो एक रिवायती मनसबी ज़िम्मेदारी है, उसको वो आसान तरीके से पूरे कर सकें। आगा सैयद हसन ने जिला बांडीपुरा के गांदो सलावारी का दौरा किया। उन्होंने मुहर्रम अल-हराम की तैयारियों के हवाले से अंजुमन शरई शियान के अरकान के साथ तबादला ख्याल किया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने हुकूमत से सीनियर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की फौरन रिहाई का भी मुतालबा किया। उनका कहना है कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये तवक्को रखते हैं कि श्रीनगर में 2 तारीखी जुलूसों पर आयत पाबंदी को ख़त्म करेंगे। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में दीगर मजहबी तकरीबात भी मुनक्किद होती हैं, तो मुहर्रम अल-हराम के जुलूसों पर पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं बनता। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अदालत आलिया से ये उम्मीद रखते हैं कि वो श्रीनगर में 8 और 10 मुहर्रम अल-हराम के जुलूसों पर आयत पाबंदी को ख़त्म करेंगे। डंडोरा पीटा जाता है कि अमन अमान कायम हो गया, 370 हटाने से यहाँ के हालात बेहतर से बेहतर हुए, तो यही उनका जवाब है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ हालात ठीक है, तो फिर आशुरा के जुलूस को क्यों पाबंदी है? 8वीं की अलमी शरीफ को क्यों पाबंदी है? आप क्यों डरते हैं इनसे? तो हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से यही तवक्का रखते हैं और इसीलिए पिटीशन अभी दायर हुई है। हम पूरे तवक्के के साथ उम्मीद रखते हैं कि ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी पाबंदी जो कई सालों से है, कई सदियों से है, उसको इंसाफ दे। हम उसी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हमने भी कई बार तकरीरी तौर भी हुकूमत से इस्तदा की है। जो मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक साहब की मजहबी हैसियत है, वो बड़े मनसब के हामिल हैं, उनको फौरन रिहा किया जाए, ताकि जो वो मनसबी जिम्मेदारी जामिया मस्जिद में देता आया है उसको वो पूरा कर सके। कल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को होने वाले फवायद और नुकसानात के बारे में बेशुमार बहस मुबाहिसे हुए। ऐसे बहुत से तबके हैं जो आज भी मानते हैं कि खुसूसी दफात की मनसूखी का फैसला मुनासिब नहीं था, लेकिन जम्मू में आबाद मगरबी पाकिस्तान के मुहाजिरीन, वाल्मीकि समाज वगैरह जैसी कम्युनिटीज़ काफ़ी खुश हैं
کہ انہیں شہریت کے حقوق مل گئے ہیں اور وہ اب جموں کشمیر کے عام لوگوں کی طرح تمام قسم کے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ سال 2019 میں 5 اگست کے دن حکومت ہند نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی، جس کے تحت آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرتے ہوئے جموں کشمیر کو یوٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ مرکزی حکومت کے اس فیصلے پر وادی کشمیر میں ناراضگی کے ساتھ ساتھ ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا، لیکن جموں میں آباد مغربی پاکستان کے سینکڑوں مہاجرین کے لیے یہ فیصلہ کسی بڑے تحفے سے کم نہیں تھا، کیونکہ 370 کی منسوخی کے بعد انہیں شہریت کے حقوق مل گئے ہیں، جس کے بعد انہیں وہ تمام سہولتیں حاصل ہیں جو عام شہریوں کو مل رہی ہیں۔ ان کے بچے نوکریوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور انہیں دوسروں کی طرح ووٹنگ کے حقوق بھی حاصل ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 کو ختم کرنے کے بعد مثبت تبدیلی آئی ہے، باوجود اس کے حکومت کو پاکستانی مہاجرین کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے ادھک جو لابھ پہنچا ہے وہ یہاں پشچمی پاکستانی جو پارٹیشن کے وکٹم لوگ تھے، جن کو یہاں ناگرکتا کا ادھیکار نہیں تھا، ووٹ کا ادھیکار نہیں تھا، وہ سارے ادھیکار ان کو مل گئے ہیں اور وہ لوگ مین سٹریم میں آ گئے ہیں، پاک ادھیکرت جموں کشمیر سے آئے ہوئے استھاپت۔ ان کے مسئلے یہ تھے کہ ان کی موویبل ایموویبل پراپرٹیز LOC کے پار پڑی ہیں اور سرکار نے آج تک اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ علاقہ خالی کرائیں گے اور آپ لوگوں کو آپ کے گھروں میں واپس بھیجیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہاں سیٹل کیا جاتا ہے تو ایک سندیش جائے گا کہ ہم نے اس علاقے کو چھوڑنے کا من بنا لیا ہے۔ جموں میں والمیکی اور گورکھا سماج کے بھی بہت سے لوگ آباد ہیں جو جھاڑو دینے اور نچلے درجے کا کام انجام دیتے ہیں۔ انہیں بھی برسوں سے شہریت دینے سے انکار کیا گیا، تاہم یہ لوگ بھی اب خوش ہیں کہ انہیں ڈومیسائل وغیرہ جیسے تمام حقوق مل گئے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت معاشی طور پر کمزور کمیونٹیز کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ملازمتوں کا انتظام کرے۔ ڈومیسائل میں بھی A کلاس ہے، B کلاس، جن کے پاس A ہے وہ خرید سکتے ہیں، جن کے پاس B ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا یہاں سے۔ بچوں کی نوکریاں وہ بند ہیں، نوکری کو مل نہیں سکتی کوئی بھی۔ پہلے بولتے تھے ہم آپ کے بچے پڑھاؤ، بچوں کو، بچے ہم نے پڑھائے ہیں، بچے BA MA کر گئے، پھر بھی کسی کے پاس نوکری نہیں ہے۔ کشمیری پنڈت مائیگرینٹس کے مطابق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے اب تک ان کے لیے کوئی بڑی اسکیم نہیں لائی گئی۔ یہ بات بھی عیاں ہے کہ حکومت نے ان کی واپسی اور بحالی کی تو بہت باتیں کی، لیکن زمینی سطح پر اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آئے۔ یہاں تک کہ PM پیکیج کے ملازمین جو وادی میں کام کر رہے تھے واپس جموں ہجرت کر گئے ہیں اور وادی سے جموں میں ملازمتوں کی منتقلی کے مطالبے کو لے کر سڑکوں پر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ان کی بحالی و بازآباد کاری کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ تو وڈمبنا ہے کہ جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم بسائیں گے، جو چیز بہت ایکٹیولی انکلائن ہونی چاہیے تھی وہ پورا ڈکلائن ہو رہی ہے۔ مطلب ابھی جیسے ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے انڈر دا پالیسی آف ریہیبلیٹیشن، اور آج ایک فیئر سائیکوسس کے تحت ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، کہیں آفس میں مر رہے ہیں، کہیں پہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، انہیں بھی وہاں پہ ڈر لگ رہا ہے، تو وہ سارے اٹھ کے آج ماس مائگریٹ ہو کے جموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس حساب سے تو کہیں پہ ایک ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی ہمارے لحاظ سے۔ کیا آپ نے کوئی روزگار دیا؟ نہیں دیا۔ کیا آپ نے ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کی واپسی کا جو ایک خواب جو آپ نے کشمیری پنڈت سمدائے کو جو بتایا تھا، دکھایا تھا، کیا اس کے اوپر کوئی روڈ میپ یا کہیں آپ نے آج تک کوئی کام کیا؟ جو مائیگرنٹ جو ڈسپلیس کیمپوں میں رہتے ہیں یا نان کیمپ میں رہ رہے ہیں، کیا ان کی کہیں کوئی باڑی آپ نے بنائی؟ کیا ان سے کوئی صلاح مشورہ کیا گیا؟ نہیں کیا، کیونکہ اس لیے آپ ٹوٹل فیل ہو۔ حکومت ہند کا کہنا ہے کہ 370 کی منسوخی کے بعد صورتحال میں تبدیلی آئی ہے، لیکن مجموعی صورتحال میں بدلاؤ کے لیے مزید کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تمام کمیونٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے جموں سے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ کشمیر میں ان دنوں سیاحت عروج پر ہے۔ سیاحوں کی ریکارڈ تعداد نے جموں کشمیر کا رخ کیا ہے۔ ادھر راجیہ سبھا میں وزارت داخلہ نے ایک تحریری بیان میں بتایا ہے کہ رواں سال 1 جنوری سے 3 جولائی تک جموں کشمیر یوٹی میں تقریباً 1,06,24,000 سیاح پہنچے۔ ہمارے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر پرویز بھٹ نے سیاحوں سے بات چیت کی اور جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون سی کشش ہے جو انہیں جموں کشمیر کھینچ کر لا رہی ہے۔
तकरीबन 3 साल यहाँ अगर हम कश्मीर में बात करें तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ पे काफ़ी सेटबैक रहा 3 साल जो कोविड के रहे यहाँ पे। लेकिन अगर 2022 की हम बात करें तो इस बार टूरिज्म कुछ ऐसा लगा यहाँ पे कि जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं यहाँ पे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि काफ़ी सिक्योर जो यहाँ पे अब सयाह आ रहे हैं वो काफ़ी सिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ इस टाइम श्रीनगर के गार्डन में कुछ सयाह बाहर से मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे ही जानना चाहेंगे कि कश्मीर आके इनको कैसा लगा। सर आप नाम बताइए अपना और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए यहाँ पे। प्रेम रजानी फ्रॉम बॉम्बे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है एंड वी फील वेरी सिक्योर। काफ़ी अच्छा माहौल है, पब्लिक का वेरी फ्रेंडली, होटल हो या टैक्सी या पब्लिक ऑन द स्ट्रीट्स, फैंटास्टिक, जस्ट फील ग्रेट, वेरी सिक्योर एंड सेफ, लव टू कम अगेन। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो बाकी टूरिस्ट जो है जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कम टुमारो, वाई वेट, कम टुमारो। खाली गर्मी बहुत है ये आज के दिन, तो ऑफ कोर्स नाइस वेदर, नाइस सिटी, प्लीज डू कम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, फील प्राउड ऑफ इट, एक्सीलेंट। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर देखा गया है कि जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं यहाँ पे अपनी कंट्री के, वो फॉरेन डेस्टिनेशंस प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, स्विट्जरलैंड वगैरह। कश्मीर को भी माना जाता है कि ये किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। आप यहाँ पे आए, कैसा एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे महसूस किया और आप की राय क्या रहेगी इस बार? मैं तो हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि आप लोग को तो विदेश जाना है, पहले अपने इंडिया को तो आप ये करो, पूरा कवर कर लो, और आपको स्विट्जरलैंड वहां देखना, हमारा स्विट्जरलैंड तो यही है कश्मीर। इतना सुंदर, इतना क्लाइमेट इज सो गुड, आई मीन एवरीथिंग इज सो गुड, खाना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा आके। हम ऑफकोर्स कोविड के कारण हम 2-3 साल से आए नहीं है, हम आते रहते थे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, द पीपल आर वंडरफुल आउट हियर, दैट्स ऑल आई कैन से। हमारा इनफैक्ट पूरा ऑफिस आया है एंड आई वुड recommend everyone who's thinking twice कि please come here, it's beautiful। तो कल हम दाल लेक गए एंड शिकारा में गए एंड इट वाज जस्ट सो नाइस, यू नो, द पीपल, इवन जो सेल्स कर रहे थे, दे वाज सो नाइस, वी फेल्ट सो कंफर्टेबल। 1 मिनट भी डर नहीं लगा कि हम कश्मीर आए, सोचना पड़ेगा, वी वर सो फ्री। हद तक एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो जाती है, खासतौर अगर हम मीडिया के कुछ सेक्शंस की बात करें तो लोगों में भय पैदा किया जाता है, डर पैदा किया जाता है। वो मीडिया है, बट यहाँ आने से पता पड़ता है सच क्या है। और मैं कह रही हूँ ना, हम लोग को 1 मिनट का भी डर नहीं लगा, हम लोग खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लाइक वी आर इन एनी अदर प्लेस। थैंक यू वेरी मच। जो ऑफिशियल फिगर्स यहाँ पे मरकजी सरकार की तरफ से अब तक आए हैं, बताया जाता है कि 1 करोड़ के करीब जो है सयाह यहाँ जम्मू कश्मीर आए हैं, जिसमें काफी सारे सयाह ऐसे भी हैं जो कटरा वैष्णो देवी गए हैं और यहाँ कश्मीर का भी काफी सारे सयाहों ने रुख किया है। ऐसे में जरूरत इस बात की बनती है कि एक माहौल जो यहाँ पे इस टाइम बना हुआ है, इस माहौल को बरकरार रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वो वादी कश्मीर का रुख करें। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। उधमपुर पुलिस को गश्त के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। तफसीलात के मुताबिक गश्ती पार्टी ने गोलेमेला पेट्रोल पंप के करीब मशकूक हालत में घूमते 2 अफराद को देखा। पुलिस को देखकर दोनों अफराद ने फरार होने की कोशिश की। भागते हुए एक शख्स को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त मुख्तियार अहमद वल्द खलील रहमान साकिना पर्दा तंगधर कुपवाड़ा के तौर पर की गई है, जबकि उनके दूसरे साथी जगतार सिंह नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमिन की गाड़ी के तलाशी के बाद पुलिस को तकरीबन 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, साथ ही 1 करोड़ 90 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि दोनों अफराद मुनशियात के कारोबार में मुलविस थे। हुकूमत के सामने पहले से पेश किए गए मुतालबात की तकमील के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अरकान ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जानीपुर में एक एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने अदालतों, ट्रिब्यूनल्स और कमीशनों में काम का बाइकआउट किया। वकला का कहना है कि अदालतें और ट्रिब्यूनल्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर मुंतकिल होने की वजह से वकला और आवाम को नाकाबिल तलाफी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हाईकोर्ट के सिंगल मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स की रिहाइश मांगी, क्योंकि वहां काफी जगह दस्तयाब है। सिर्फ एक ही ये डिमांड है कि जो सारे कोर्ट्स हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इनको अंडर वन रूफ रखें, जबकि हम यहाँ पे पहले भी प्रैक्टिस करते थे। अब जैसे कंज्यूमर कोर्ट पिछले 3 सालों से बंद है, उसको भी इन्होंने रिशिफ्ट कहीं और किया हुआ है। हमारी यही जेन्युइन डिमांड है
कि जो हमारी ये मांगे हैं एलजी गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले। की बार सस्पेंड है, कल भी बार सस्पेंड था और परसों 2 दिन पहले भी सस्पेंड रहा है और आने वाले 2 दिन में भी सस्पेंड, कल भी सस्पेंड रहेगा। और हमारी जो मांग है ये सबसे पहले हमने यही कहा था कि जितनी बाहर की जो ट्रिब्यूनल हैं और वो यहाँ पर आ जाएं ताकि लोगों को भी उसमें सहूलियत हो और वकीलों को सहूलियत हो, क्योंकि एक ट्रिब्यूनल जो है स्पेशल ट्रिब्यूनल कहाँ ही है और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो चंडीगढ़ में है, वहाँ पर जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट खुली नहीं है, बैंकिंग कोर्ट भी जो है स्कैटर हैं। हमारा चाहिए ये है कि यहाँ सारे बुकला साहबान बैठते हैं, वकील बैठते हैं ताकि किसी भी आदमी को केस का नुकसान ना हो जाए और वो कम से कम हम वकील को जो है फैसिलिटी होनी चाहिए। JNK वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। एसोसिएशन ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में कौमी तराने और दुआ से शुरुआत करके एक मुनफरद अंदाज में अपना एहतजाज जारी रखा। एहतजाजियों ने पेशेवराना तरबियत के शराकतदारों को हटाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स का वोकेशनल तालीम के शोबे में कोई किरदार नहीं है। जो स्कूलों में जाते हैं हमारा डे ऐसे स्टार्ट होता है, तो आज हमने वो जहाँ से भी वैसे स्टार्ट किया कि हमारा टाइमिंग भी वैसे है 10 to 4 का है, तो हम वहाँ स्कूल में भी वैसे स्पेंड करते हैं अपना डे। और बच्चों को जो हम तालीम देते हैं, जो हम उनको एजुकेशन देते हैं, हम उनको स्किल कर रहे हैं। गवर्नर सर से हमारा एक डेलीगेशन भी मिला और मैं डेलीगेशन के बिहाफ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि गवर्नर सर ने हमें एश्योरेंस दिया था, आवाम की आवाज़ में भी उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम आपके लिए जॉब पॉलिसी लाएंगे। इवन उन्होंने डायरेक्ट किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और SPD समग्रा को कि इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए। मगर बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो नीचे बैठे हुए हमारे ऑफिसर्स हैं वो इस बात को सुनने को रेडी नहीं है। वो 6 साल से, सर आप मुझे एक आंसर दीजिए कि 6 साल में एक पैसे का इंक्रीमेंट नहीं, कौन सा ऐसा काम है। कुपवाड़ा जिले के हंगालंगेट के तिब्बी मरकज में जगह की कमी की वजह से अस्पताल अमले के साथ साथ अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए आने वाले अफराद भी परेशान हैं। लोगों का मुतालबा है कि अस्पताल में 24 घंटे सर्विस फराहम कराई जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें और मरीजों को इस दूर उफ्तादा इलाके में बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम हो सके। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर से ज़ाती मुदाखलत की अपील की। जो भी हॉस्पिटल अपग्रेड हुई है उनमें काम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ये हमारा हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है सब सेंटर की बुनियाद पे यहाँ 1000-1500 के करीब पेशेंट आते हैं। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि अगर हमारा ये हॉस्पिटल अपग्रेड हो जाए लोगों की मुश्किल का हल हो जाए। जनाब बस कर अर्ज इत कन कि मतलब ये सेंटर जो चलान यह वरियो पे चलान मगर बिल्कुल ये बसीद हालत मज वो पान तक डंगज रोजम कह करोन एडमिट अत जाए सह गुंजाइश कह अस्पताल दी मतलब सहूलियत मिले अपग्रेड तवामस मिले सहूलियत तो यह गए इनायत तुज अगर कि तुम वातो ये पन्ने जरिए आयर अथॉरिटीज तम उम्मीद ये की जा सकती है कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर इस बात का संजीदा नोटिस लें और महकमा सेहत के डायरेक्टर जो हैं वो भी इसका संजीदा नोटिस लें। इनके लिए एक नई इमारत का क़याम अमल में लाया जाए और दूसरा इसका अपग्रेडेशन हो ताकि इन लोगों के आने वाले वक्त में मुश्किलात कम हो सकें। नेटवर्क 18 के लिए या जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने आज जम्मू के इलाके वजारत रोड पर पार्किंग कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने सोहेल काजमी रुकन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और बहुत से दीगर लोगों की मौजूदगी में संग बुनियाद रखा। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ओनी लवासा भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर दरख्शान दराबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड से मुनासिब मंजूरी के बाद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनसूबे के पहले मरहले पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डोनेटेड लैंड है, ये सब जानते हैं और डोनेटेड लैंड पे कोई कब्जा ही नहीं कर सकता है। अब जो ये है इस पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, ये हम किसी को दे नहीं सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं मगर हम आपके नाम या मेरे नाम नहीं कर सकते। यहाँ पे मॉडर्न पार्किंग हो जाएगी, उसके ऊपर से एक बाज़ाब्ता एक हॉल बन जाएगा जहाँ पे वक्फ बोर्ड का ऑफिस भी बनेगा और यहाँ पे ज़रूरत होती है हॉल की तो हम
आज की डेट में इस लैंड का यूज करेंगे। जब का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जे.एंड.के वक्फ बोर्ड बनाया है, कोशिश यही है कि जहाँ भी हमारी वेकेंट प्लेसेस हैं उनको यूज़ किया जाए कमर्शियली भी, और उससे रोज़गार भी यूथ को मिले। यहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स भी बनेगा, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है सिटी में, तो उसके लिए ये एक प्लॉट हमारे पास 4.5-5 कनाल का था, इसको हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी की राजौरी यूनिट ने यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल लोगों में मुल्क के झंडे तकसीम करके मुहिम का आगाज़ किया। हर घर तिरंगा मुहिम को बीजेपी के दफ्तर से शुरू किया गया। मुहिम की क़यादत बीजेपी राजौरी पुंज के हर घर तिरंगा इंचार्ज और जिला सदर राजौरी ने की। बीजेपी के तिरंगा मुहिम के इंचार्ज का कहना है कि सबको इस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए ताकि तिरंगे को हर घर तक पहुंचाया जा सके। हमने इस कार्यक्रम का प्रचार करना है, किस तरह हमने इसकी रैलीज निकालनी है, किस तरह हमने होर्डिंग निकालने हैं, किस तरह इसको सोशल मीडिया में लेना है, ये सारी चीजें। और मैं आपके माध्यम से हम सारी जनता को ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हर घर तिरंगा अभियान है, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसमें हमारे 75 साल आज़ादी के जो पूरे हो रहे हैं, ये जो मनाया जा रहा है, इसमें जो तिरंगा है वो इसकी नोडल एजेंसी जो है वो रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट के जो हमारे BDOs हैं, हमारे VLWs हैं, GRS हैं, उनसे संपर्क करो। हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छतरवाल और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोरसाई मोरी की तालिबात ने एक तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तक मुल्क भर के साथ साथ सरहदी जिला पुंज और मेंढर सब डिवीजन में तिरंगा लहराए जाएंगे। रैली में आम लोगों से तालिबात ने मुलाकात की और हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में लोगों को जानकारी दी। तालिबात ने हाथों में कौमी परचम लहराते हुए PM मोदी व मुल्क के हक में नारे लगाए। बीजेपी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़ेर-ए-इत्माम डोडा में हर घर तिरंगा मुहिम का इनकाद किया। लोगों को हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर परचम लहराने की तरगीब दी जा रही है। परचम के साथ हमारा रिश्ता ज़ाती से ज़्यादा रस्मी और इदारा जाती रहा है। इस तरह आज़ादी के मौके पर इज्तिमाई तौर पर तिरंगे को घर लाना मुल्क के तई एक ज़ाती ताल्लुक़ और कौम की तामीर के तई हमारी वाबस्तगी की अलामत बन जाता है। इस इक़दाम का मकसद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को उभारने के साथ साथ कौमी परचम को फ़रोग़ देना है। बीजेपी के नायब सदर जम्मू कश्मीर UT शक्ति राज परिहार, साबिक़ MLA भद्रवा दिलीप परिहार, रियासती फ़र्क़ावारात अक़लियती मोर्चा को सरंतु और बीजेपी के कई कारकुनान ने रैली में शिरकत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव गवर्नमेंट के मुताबिक CEO करगिल की हिदायत पर हायर सेकेंडरी स्कूल शारगोल में मुबाहस और ड्राइंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। मोहम्मद हनीफा ने ड्राइंग और स्टैंजन यूडिप ने डिबेट मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया। स्कूल के प्रिंसिपल ईसा नमग्याल ने तलबा से खिताब के दौरान कहा कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर मुल्क के लोगों को फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर शख्स को इस जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। मुबाहसा मुकाबले के इंचार्ज अनवर हुसैन लेक्चरर और ड्राइंग मुकाबले के इंचार्ज मोहम्मद फेरोज ने इस दौरान स्कूल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में सफाई मुहिम चलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने आज आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स हुमामा में मुनक्कदा तकरीब में ब्लड रेसिडेंट मार्क्समैन टेक्निकल इंटरवेंशन लाइट मोटर व्हीकल्स को झंडी दिखाने के अलावा कंटेनराइज्ड शूटिंग रेंज का इफ्तिताह किया। DGP ने बुलेट रेजिस्टेंट लाइट मोटर व्हीकल्स का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आला हिफाजती तकाज़ों के साथ इन गाड़ियों को खुसूसी ड्यूटी के लिए CRPF के साथ तैनात किया जाए। फौज की 29 RR ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन और सिविल इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से डिग्री कॉलेज पटन में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप में मकामी लोगों, SSB, आर्मी और सिक्योरिटी के दीगर रजाकारों ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर 29 RR के कमांडिंग अफसर कर्नल बनर्जी और दीगर अफसरान ने भी खून का अतिया पेश किया। नौजवानों ने इस कैंप का इनकाद पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान डॉक्टरों ने खून के अतिये की अहमियत और कीमती जानें बचाने में उसके किरदार के बारे में आगाही दी। ये मानना है कि ब्लड डोनेशन जो है इंसान को इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, आना चाहिए हर 3 महीने में जहाँ जहाँ पर भी। इनफैक्ट मैं जब भी घर आ जाता हूँ, जब भी मेरे को मौका मिल जाता है, मैं तो श्रीनगर जाता हूँ डोनेशन के लिए। श्रीनगर में मैं सोरा गया हूँ, अपना यहाँ पे JVC मैंने भी 1-2 बार किया है। तो जहाँ पर भी इंसान को मौका मिलना चाहिए, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पर इंसान को करना चाहिए। तो एक पॉइंट दिया था ब्लड यहाँ पर,
इंसानियत है, इससे किसी की जान बच सकते, इसलिए मैंने ये डोनेट ब्लड किया था। हाँ, यहाँ पर आना चाहिए और ब्लड डोनेट करना चाहिए। हम ब्लड इसलिए दे रहे हैं कि जिसको जरूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसको मिल पाए। आजकल हमारे जो कंट्री के अंदर ये ब्लड डोनेशन का बहुत जगह पे कैंप लगता है, तो ऐसे लगता है जिसको ज़रूरतमंद है उसको ब्लड मिल सके। जो यूथ हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसमें लोगों को, खासकर मैं नौजवानों का कहूँगा, वो जोक दर जोक आ रहे हैं ब्लड देने के लिए, तो इसमें हम सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो खून हम यहाँ जमा करते हैं, ये मैक्सिमम नीडी पेशेंट्स को जाता है, एक्सीडेंट, गायनी, कैंसर पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट, ये उनके लिए हम जो इमरजेंसी के वक्त जिनको कोई भी सहारा नहीं होता है, ये उनके लिए हम जमा करते हैं। उत्तराखंड में हिंद चीन सरहद पर मिट्टी का तोदा गिरने से शहीद होने वाले फौज के सिपाही सुखजिंदर सिंह की आज पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। आरएसपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले शहीद की आखिरी रसूमात में हजारों अफराद ने शिरकत की। लोगों ने शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद के जसद खाकी घर पहुंचने से कबल ही माहौल इंतहाई सोगवार हो गया था। शहीद की आखिरी रसूमात में वजीर चौधरी श्यामलाल, डीडीसी सुचितगढ़ तरनजीत सिंह टोनी समेत कई सियासी व समाजी तंजीमों ने भी शिरकत की। न्यूज 18 की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र, जहां इंतजामिया ने तमाम तैयारियां की थी, ताहम जिला पुलवामा के कांगू इलाके में स्ट्रीट लाइट्स न होने से लोगों को शाम के औकात में दिक्कतें आ रही थी, जिसकी खबर न्यूज 18 पर नशर होने के साथ ही बीजेपी लीडर मीर सरूर हुसैन ने अपने ज़ाती फंड से स्ट्रीट लाइट्स खरीदी और गांगू के अंदरूनी गली कूचों में नस्ब करवाई। मकामी आबादी और बीजेपी लीडर मीर सरूर हुसैन ने आम लोगों के मसाइल उजागर करने पर न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया। गोडनिक मुहर्रम को स्टार्ट लाइटन गलत तम पत आव न्यूज 18 की मीडिया एम्बिक सठा शुक्र गुजार। तम पत सरवर सबन यमो ये पूरी तौर कार्रवाई कर, तम पत अन तमो लाइट, तम गई वनकन लाइट तक गई चालू। शुक्र गुजार न्यूज 18 तम पत सरवर सबन शुक्र गुजार। उनकी डिमांड थी, मैंने वो स्ट्रीट लाइट्स भी लगाए पूरे इलाके में, और मैं अपनी पार्टी के आला क़यादत से बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे ताउन किया है कि ये स्ट्रीट। इस मुहर्रम में अपने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई इकदाम किए, जिनमें मुहर्रम के बैनर्स लहराना और अज़ादारों को पानी और रिफ्रेशमेंट फराहम करना शामिल है। आज SHO निशाद गौहर हुसैन ने फोरशो रोड श्रीनगर में मुहर्रम का बैनर लहराया, जिस पर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था। SHO ने मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में शिया बिरादरी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। CPIM ने सर्किट हाउस शोपियां में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी और PAGD के तर्जुमान MY तारगामी ने कारकुनों से खिताब किया। MY तारगामी का कहना है कि वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद का असल मकसद कारकुनान को हालिया सियासी माहौल के बारे में आगाही के साथ साथ पार्टी और PAGD को ज़मीनी सतह पर मजबूत करना है। MY तारगामी का कहना है कि तिरंगा हिंदुस्तान की शान है और हर शख्स को अपने मुल्क और तिरंगे के तई रग़बत और मोहब्बत होनी चाहिए। लोगों की खासी तादाद ने इजलास में शिरकत की। ये तिरंगा एक सिंबल है मुल्क का, तो लाजमी तौर पर ये कोई दिल से चाहे तभी इसकी शान भी रहेगी और इसका वक़ार भी रहेगा। मैंने कहा कि अभी देख लीजिए कि दिल्ली में बिलडोज़र, यूपी में बिलडोज़र, मध्य प्रदेश में बिलडोज़र, कहाँ कहाँ नहीं बिलडोज़र। अरे अगर हमारे मुल्क में जो एक आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन अब भी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, जहां लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है, वहां एक शहरी का भी ये हक है कि वह अपने मसाइल का, अपने मामलात का दिफा करे। लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जिन शोबों को बहुत ज्यादा मौके मिले हैं, उनमें से एक ज़राअत और उससे मुंसलिक शोबे हैं। करगिल जिले के खुबानी के ODOP से लेकर लेह से सेब तक की मसनूआत न सिर्फ कौमी मार्केट बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट तक बरामद की गई। डिविजनल फॉरेस्ट अफसर करगिल धवन कुमार रावत के जरिए क्विंटल लेलियम फूल की पहली खेप दिल्ली के लिए रवाना की गई। ये पहली खेप
किसानों की कंपनी फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी की काविशों का नतीजा है, जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक पहल है। मीडिया से बात करते हुए डीएफओ करगिल ने कहा कि ये एक नया आइडिया है और इस तरह के फूलों की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मांग है। उन्होंने कहा कि करगिल में फूलों की ज़राअत का मुस्तकबिल काफ़ी खुशाइंद है। ROPC लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अहमद अली ने कहा कि लद्दाख में फूलों की ज़राअत का एक बड़ा बैनुल-अक़वामी मरकज़ बनने की सलाहियत है। रिजल्ट है तो वो फ्यूचर में फार्मर्स के लिए ये एक अच्छा मतलब एक कैश क्रॉप बन सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो ये फर्स्ट कंसाइनमेंट है वो 1 क्विंटल के आसपास है, वो हमने अभी दिल्ली भेजा है ताकि वहाँ के मार्केट में जो लद्दाख के लीलियम है, लद्दाख के जो फ्लावर्स है, उसका एक मार्केट बन जाए और फ्यूचर में हमारे जो फार्मर्स है वो लीलियम तैयार करें। पहले रांग्युल FPO जो है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ पे एक वेरी नोवेल आइडिया को लेके प्रमोट किया है और ट्यूलिप का डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत है। इट्स यूज्ड इन मेनी थिंग्स, वेडिंग्स में या और डेकोरेशंस में। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे फार्मर्स को बहुत प्रोग्रेसिव बनाएंगे और मैं रियली में बहुत इलेटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि इस आइडिया को ये FPO यहाँ पर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर ने DC कॉन्फ्रेंस हॉल में वार्तालाप नामी एक रोज़ा मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद हुकूमत की पॉलिसियों, प्रोग्रामों और स्कीमों को मौसर तरीके से लोगों तक पहुंचाने और इसके तरक्याती एजेंडे को मजबूत बनाने के लिए PIB और मीडिया के दरमियान राब्तों को मजीद मजबूत बनाना था। डिप्टी कमिश्नर ले श्रीकांत बाला साहब सोसे तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PIB श्रीनगर राजेंद्र चौधरी ने मीडिया के अफराद का खैर मकदम किया और आवाम तक मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात पहुँचाने में मीडिया के अहम किरदार की वजह से उन्हें हुकूमत के कान और आंखें करार दिया। मारूफ बुद्धिस्ट रहनुमा खागेला रंपोचे स्टेंजियन वांगचुन ज़ंस्कार दौरे पर पहुंचे। उधम ज़ंस्कार पहुंचने पर उनका हजारों लोगों ने रिवायती तरीके से इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चे और मर्द ख़वातीन ने फूलों के गुलदस्ते से उनका इस्तकबाल किया। पदम ज़ंस्कार में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसका उन्वान था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ज़ंस्कारी लैंग्वेज। सेमिनार का मकसद ज़ंस्कारी कम्युनिटी के मेंबरान में बेदारी फैलाना था। खास तौर पर GMDC के अंडर ग्रेजुएट तलबा को ध्यान में रखकर इस सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद नौजवानों में अपनी ज़बान के तई बेदारी लाना था। रिसर्च स्कॉलर माज अहमद शेख ने इस मौजू पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया। अपने प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ लद्दाखी बोलियों की शक्ल, साख्त और असलियत पर रोशनी डाली। बांडीपुरा के मलंगांव इलाके में मारूफ बुजुर्ग व रूहानी शख्सियत सैयद रसूल शाह अल मारूफ नानगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स का अहतमाम किया गया और उसकी तकरीबात 10 अगस्त तक जारी रहेंगी। कोविड की पाबंदियों के कई साल बाद उर्स की तकरीबात रिवायत के मुताबिक मुनक़्क़िद की जा रही है। मुल्क के कई हिस्सों से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद इस उर्स में शिरकत करते हैं। मौजूदा सज्जादा नशीन के फर्जन सैयद शिफात का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ने अक़ीदतमंदों के लिए हर तरह की सहूलत को मैसर रखा है। जो ख़त्मात मौज़ूमात का सिलसिला वो आज से स्टार्ट हो गया है और ये 7 दिन का उर्स रहता है। 10 अगस्त को इंशाअल्लाह सवेरे 9 साढ़े 9 के करीब परचम कुशाई होगी और चादर पोशी होगी। उसके बाद इख्तिताम की जो दुआया मजलिस होगी, जो सज्जादा नशीन साहब हैं मेरे वालिद साहब वो दुआ मांगेंगे, तो उस वक्त ये उर्स शरीफ इख्तिताम पजीर होगा। इंतज़ामात जो हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं, हम मुतमईन हैं पूरी तरह से। ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने DC साहब का, डॉक्टर अवैस साहब का, कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए हैं। उन्होंने यहाँ टीमें तश्कील दी हैं। जिला रामबन में हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी में सवेरा फाउंडेशन की जानिब से एक कसीर-उल-लिसानी मुशायरे का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में उर्दू, हिंदी, डोगरी व पोगली ज़बान में शोरा ने अपना कलाम पेश किया। तकरीब में जिला रामबन व जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों से आए नामवर अदीबों और शोरा ने शिरकत की। सवेरा फाउंडेशन की जानिब से कसीर-उल-लिसानी मुशायरे के इनेकाद को लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी के स्टाफ व तलबा ने इस पहल का खैर मकदम किया। आज हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरी इन कोलैबोरेशन विद सवेरा फाउंडेशन मुनक़्क़द किया गया। तो इसमें हम ये मैसेज देना चाहते थे यंग
जो राइटर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, कि कम से कम उनको जो पता चले कि ये जो है अदबी महफिलें कैसे मुनक़्क़िद की जाती हैं, और इससे जो है उनके अंदर अदबी ज़ौक़ पैदा करना था। पुंछ जिले के मेंढड़ इलाके के SDM मोहम्मद जहांगीर ने दूरअफ्तादा पहाड़ी गांव पथनातीर का दौरा किया। इलाके के सरपंच की दरख्वास्त पर इंतजामिया के अफसरान के हमरा गांव का दौरा किया। हालिया बारिशों के सबब फसलों और सड़कों को हुए नुकसान का जायजा लिया। SDM ने लोगों को पथनातीर ने हालिया बारिशों से हुए नुकसानात बिलखसूस तबाहशुदा मकानात का मुआवजा फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुतासरीन की फाइलें बनाकर डिप्टी कमिश्नर को मुनासिब मुआवजे की फराहमी के लिए भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन अफराद के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं उन्हें खैमे फराहम किए जाएंगे। दौरा किया इस इलाके का, तो ये हमने पाया कि काफ़ी लोगों के जो है कच्चे मकान थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और कुछ रोड्स जो हैं वो भी काफ़ी जगह से ब्लॉक हैं। उनके ब्लॉक्स जो है खुलवाने के लिए हम डिपार्टमेंट्स को बोल दिया है, और कुछ मैक्सिमम रोड जो हैं वो ब्लॉक उनके क्लियर कर दिए हैं। अब जो मकान का है वो हम मकानों का है, कच्चे मकान जो गिरे हैं हमने देख लिए हैं, उसका असेस करेंगे। उनकी फ़ाइल जो है बना के तुरंत जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को सौंप दी जाएंगी। कुछ लोग जो हैं जिनके घर गिर गए हैं तो उनको इमीडिएट ज़रूरत है कुछ टेंट्स वगैरह की देने की, जिसके लिए हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि इमीडिएटली इनको थोड़े से टेंट भी दिए जाएं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे ही लोग हैं। सबसे पहले तो हम SDM साहब मेंढर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी पंचायत पठानातीर का दौरा किया, और जो भी हालिया बारिशों की वजह से जो भी नुकसानात हुए थे और जिनके मकानात डैमेज हो गए थे लैंड स्लाइडिंग की वजह से, उनका मौका हमने दिखाया है। और उनकी फ़ाइलों का प्रोसेस का SDM साहब ने बोला कि 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें दी जाए। हमको इनके लिए मुआवजे के लिए फ़ाइलें पुंछ DM साहब को पुंछ के सुरनकोट इलाके के दूरअफ्तादा गांव के लोग परेशान हैं। डाना सांगला के सड़क का तामीराती काम 14 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि सड़क की अदम मौजूदगी की वजह से कई देहातों को शदीद परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि उन्हें रोजाना 10 किलोमीटर का सफर जरूरी सामान उठाकर गांव पहुंचाना पड़ता है। लोगों का इल्जाम है कि साल 2008 में MLA फंड के जरिए सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया, लेकिन फंड्स की कमी के बाद काम मुकम्मल नहीं हो पाया। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से सड़क की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। आप जबान से तो हर एक कहता है हमने ऐसा कर दिया, ऐसा किया, कुछ नहीं वो किया, आपके आंखों के आगे दिखता है। कोई नाली नहीं निकालते, कोई सड़क नहीं। ये मकान है, इसमें पानी अंदर जा रहा है। हर मकान 10 मकान तो यहाँ गिर गए। इसमें गोथल गांव में पैदल जाते हैं, 50-50 किलो वजन उठाकर पैदल जाते हैं ऐसे बुढ़े जो तो आपने देखे सारे। परेशानी जनाब, यहाँ से सुरनकोट जाना या पुंछ जाना तो दुश्वार बन जाता है, कोई जा ही नहीं सकता बिल्कुल। मौसम की वजह से इतना बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है कि रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों के क्या है कि घरों में है, उनका मवेशी क्या है कि बंद हो गए हैं। अब क्या है कि रास्ते नहीं है कि वो अपने पानी तक जाके अपने मवेशी को पानी पिला सकें, अपने घर से निकल के क्या है कि दूसरे घर तक जा सकें। यहाँ से बच्चे क्या है कि स्कूल के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सफर तय करके स्कूल तक सुरनकोट तक पहुँचते हैं। यार साधन नहीं है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो चारपाई करके हम लोग यहाँ से उठाकर बाजार ले जाते हैं। ये रोड अगर निकाली है MLA फंड की वजह से निकाली है यहाँ, तो फिर इस रोड के ऊपर जो ठेकेदार लोग थे उन्होंने खाली अर्थ कटिंग की, कोई नाली नहीं निकाली, कोई कलवट नहीं दिए, डंगे नहीं दिए। आप बरसात के मौसम में आपने हालात देखे हैं यहाँ के, जब पानी आया तो ये नीचे जो हमारे मकान है सब पानी इनके अंदर दाखिल हुआ। जनाब इसने कोई महकमा नहीं आया, रोड वाले नहीं आए, कोई नाली नहीं आई। इन लोगों में बहुत परेशानी है। कोई बंदा बीमार हो जाए पार्सल कोट तोड़ी पहुँचा नहीं सकते। इन्हें तो बहुत मुश्किल है, परेशानी है। असा देखा और असा क्या भी इस वक्त बहुत बड़े अस लोग की परेशान है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।